وظائف کے آداب میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی وظیفہ کریں اس میں اللہ کی رضا شامل حال اور نیت یہ ہونی چاہیے اور پورا یقین ہونا چاہیے، جس طرح گھی کے اندر مکھن موجود ہے، اب کاریگر پہ ہے یا قسمت پہ ہے، کسی کا 5 منٹ میں نکل آتا ہے، کسی کا 1 گھنٹے میں نکل آتا ہے۔ زمین کی تہ کے نیچے پانی موجود ہے، اب بورنگ پہ ہے، بور کرنے والے پہ ہے کہ کسی کا 10 فٹ پہ نکل آتا ہے، کسی کا 72 فٹ پہ بھی جا کے نہیں نکلتا، نکلتا ضرور۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور قرآن مجید کو پڑھیں، وظائف کریں اور اس میں برکت نہ ہو۔ برکت ضرور ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ ہم کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وظیفہ کی برکت سے ہم پہ کوئی آفت آنی ہوتی، کوئی مصیبت آنی ہوتی، ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ وہ جو ہم دعا، جو وظیفہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر یا صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں آ رہا، مگر وہ جو ایک آفت آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقہ میں اس آفت کو روک دیتا ہے۔ دوسرا، ہماری مجلس میں جو ہماری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں مایوس کرتا ہے اور یہ ہمیں نیگیٹو چیزیں دکھاتا ہے، اور یہ آپ کو نہیں دکھاتا، یہ بڑے بڑوں دکھاتا ہے۔ وہ جیسے اللہ نے ہمیں بچے دیے ہیں اور جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کسی اور کا پڑھ رہے ہیں، جن کے بچے قرآن کے حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، اور ان کے بچے اپنے والدین کو صرف والدین ہی نہ سمجھے، پیر و مرشد کی طرح جانے، اس دور میں جہاں بچے بات نہ سنیں، ہاں جی، وہاں بچے آپ کو دبائے بغیر سوئے نہ، بچے آپ کے آگے اونچی نہ بولیں، ہاں جی، آپ 1 مرتبہ کام کہیں، بچے 10 مرتبہ کریں، یہ کوئی چھوٹی دیر نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نیند کی دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو بھوک کی دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو صحت کی دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، بلکہ میں آپ کو یہ گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو نا یہ ریہرسل کرائیں، یہ مشق کروائیں، بچوں کو کبھی کبھی بٹھایا کریں کہ وہ نا لسٹ بنائیں کہ وہ 100 چیزیں لکھیں جن پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو 1000 چیزیں، یہ آکسیجن ہے، یہ سانس ہے، یہ بینائی ہے، ہاں جی، یہ بولنے کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی دولت اور نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوتا ہے، مگر شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، وہ جو 1-2 نعمتیں نہیں نہ ہوتی ان پہ ہماری نظر ٹکا دیتا ہے اور اس سے ہم مایوس ہوتے ہیں، اور وہ مایوسی ہمیں اللہ سے دور کر دیتی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کی ناشکری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو صبر کریں۔ تو وظائف چاندے کہ جو میں آپ کو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، آج کل بچوں کے بڑے مسائل ہیں کہ جی بچے بات نہیں مانتے، یہ بات کوئی عام عامل نہیں بتائے گا، پہلے بات تو یہ دیکھیں کہ میں اپنے رب کی کتنی باتیں مانتا ہوں۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا گھوڑا مجھے تنگ کرتا ہے نا، وہ پھدکتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو میں اس کو مارنے پیٹنے کی بجائے میں اتر کے مسلح بچھا کے سجدے میں گر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مالک تیری کوئی نافرمانی ہوگی اس لیے یہ مجھے تنگ کر رہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے رب کی کتنی مان رہے ہیں، جب ہم رب کی مانیں گے ہمارے بچے بھی ہماری مانیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے باوجود آپ مان رہے ہیں، ممکن ہے بچے پھر نہ مانیں، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس میں بھی صبر، اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع۔ اور بچوں کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے، مائیں جب کھانا بنائیں، جب بھی آپ کھانا بنائیں 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک ماریں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو بھی بسم اللہ شریف آتی ہے۔ جب کھانا سرو کرنے لگے پھر 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک ماریں۔ جب بچے سوئے ہوں 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایسے ہتھیلی ایسے آگے کر کے تو ایسے ہتھیلی پہ پھونک ماریں کہ ان کے تصور کریں کہ ان کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے، یا آپ کی دم جو ہے وہ کانوں میں جا رہا ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں،
इंशाअल्लाह लजीज घर के जितने अफराद हैं आपस में मोहब्बत पैदा होगी और बच्चे इंशाअल्लाह बात मानेंगे। इसी तरह बच्चों के अंदर गैर संजीदा हरकतें हैं बहुत ज़्यादा, यानी शरारतें करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके लिए या मतीनो अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, या मतीनो या मतीनो या मतीनो या मतीनो, सुबह शाम पढ़ के 11 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ साथ पढ़ के ये खाने पीने की चीज़ों पे भी बच्चों को खिलाएं और बच्चों को दम। इसी तरह बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि बच्चों की खुराक भी अच्छी करें, ऑर्गेनिक फूड दे, बच्चों को दूध दे, दही। ये दूध और दही तो फर्ज कर लेना बच्चों की खुराक में, दूध और दही ये बहुत ज़रूरी है। और चटपटी चीज़ों से बचाएं और रात को टाइम पे सुलाएं, सुबह टाइम पे उठाएं। तो 7 मरतबा सूरह अलम नशरह ये 7 मरतबा पढ़ के बच्चे के सीने पे फूंक मारें, पानी पर या बादाम पर ये फूंक मार के बादाम खिलाएं या पानी पिलाएं। ये कुव्वत हाफजा के लिए बेहतरीन चीज़, बेहतरीन चीज़। और भी इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें नबी पाक ने बताई, मगर ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतरीन वजीफा। और इस सारे के बावजूद पहले लोग आमल बुजुर्ग बताते थे कि आपने गोश्त नहीं खाना 40 दिन। मैं कहता हूँ अब ये जो वज़ाइफ मैं बता रहा हूँ ना, 40 दिन बच्चों को मोबाइल से दूर रखना। आज के दौर का गोश्त बड़ा बेशक खा लें, मोबाइल ना पकड़ें। और मैं बच्चों से भी कहूँगा, बिलखसूस बेटियों से, बच्चियों से कहूँगा, आप बहुत लाड से प्यार से पाला होता है, आप बच्चों से भी कहूँगा कुछ चीज़ें तो तय कर लें कि बच्चे बच्चियाँ एक गुस्से में फैसला नहीं करना और एक जज्बात में नहीं फैसला करना। यानी मुझे ऐसे बच्चों पे बहुत तरस आता है और मुझे ताज्जुब भी होता है कि आपके माँ बाप ने आपको इतना प्यार मोहब्बत से पाला पोसा है, आप कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, 2-4 दिन किसी लड़की ने आपको मैसेज किया, आप भूल जाते हैं माँ को, आप भूल जाते हैं बाप को। और वो लड़की भी बेवकूफ़ है और उसको ये नहीं पता कि जो मेरे 2-4 मैसेजों पे आज माँ बाप को भूल के मेरे पीछे लग गया है और कल को किसी और का मैसेज आएगा फिर उसके पीछे लग जाएगा, परसों किसी और का मैसेज आएगा फिर उसके। इसी तरह बच्ची को भी चाहिए, है नहीं। और अगर आपको यानी बच्ची कोई आपको डिट्रैक्ट करती है, खुदा ना खासा कोई लड़की कोई औरत, तो उसमें भी आप करें। जो आज आपको कह रही आज मिलने, कल को किसी और को, पता नहीं इससे पहले कितनों को मिली होगी। और इस तरह की जो शादियां भी हैं वो ताम नहीं होती, वो मुकम्मल नहीं होती। क्यों? अक्सर इस तरह के जोड़े, मेरी पूरी रिसर्च है, मेरे पास आते हैं, बड़े शौक से प्यार मोहब्बत करते, फिर क्या होता है वो तलाकें होती हैं। क्यों? इसलिए वो लड़की जो है ना वो भी कहती जिमें मैनू ये मैसेज कर दा उन्हें किसी और कर दो। वो लड़का भी कहता है जैसे मुझे ये मिलती थी चुप चुप के, क्या पता है किसी और को भी मिलती रही हो। जब ये शक पड़ता है और उससे घर तबाह हो जाता है। लिहाजा मेरी बेटों के लिए, बेटियों के लिए, आप मुसलमानों की बच्चियां हो, पाक दामन बच्ची, अल्लाह अकबर। आज के दौर की राबिया बसरिया है, आज के दौर की जो मेरी बेटी, मेरी बहन अपने दामन को वो पाकीज़ा रखती है, खुदा की कसम जबरील अमीन भी उसे सलाम करते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे, मेरी बेटियों, आप आज की बेटियां हैं, कल की माएँ हैं, परसों की दादियां और नानियां आप हैं। आपके वो कौम अगली तैयार करनी है, आपने नस्ल तैयार करनी है। आप जितनी पाकबाज होंगी, आप जितनी इबादत गुजार होंगी, आप जितनी साबिरा होंगी, जितनी तैयबा और जाहिदा होंगी, आने वाली नस्ल मुसलमानों को उतनी पाकीज़ा मिल जाएगी। आज जो हम मुआशरे का कहते हैं मुआशरा बिगड़ गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया, मैं कहता हूं अगर आज की मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कौम की माएँ ये तय कर लें, ये सारे दुनिया के शैतान नाकाम हो जाएंगे, साले मुआशरा वजूद में आ जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों को ये कहूँगा कि इस हवाले से आपकी बहुत जिम्मेदारी। और अगर किसी बच्चे और बच्ची को बहुत मोबाइल का शौक है ना, तो फिर मैं उसे ये कहूँगा कि फिर टारगेट रखें, फिर वो अर्निंग दे, वो अर्निंग दे ना जी, रिजल्ट दे। वो कोई अपना यूट्यूब पे चैनल बनाए और चैनल बना के फिर कौम को पढ़ाए, कुछ ना कुछ करें ना जी, यूट्यूब से कमाए, किसी और से कमाए, अर्निंग करें, कोई नाम पैदा करें। ये टिकटॉकर वाला कोई चक्कर नहीं है, ये कोई जिंदगी नहीं है, ये तो बेइज्जती बेइज्जती है। तो मोबाइल अव्वल तो इसके करीब ही न जाए, बगैर जरूरत के नौजवान बच्चों के हाथों में मोबाइल, ये ऐसे जैसे गैर महरम का हाथ पकड़ा हुआ है। मैं आपको बार बार इस फितने से आज के दौर में
जिस वालिदैन ने अपने बच्चों को बचा लिया वो वली अल्लाह है, वो वालिदैन वली अल्लाह हैं जिनके बच्चे इस फितने से बच गए। और मैं बच्चियों से, बेटियों से मैं आपसे फिर यही गुजारिश, आप मुसलमानों की बच्चियां हो और पाकबाज बनो, आपका किरदार बुलंद होना चाहिए। इकबाल कहते हैं जब माएँ कौम की फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ें बच जाती हैं, अल्लाह इनकी गोद में मेरा हुसैन जैसे बेटे अता फरमा देता है। कौम को बाबा फरीद ऐसे नहीं मिलते, नेक माएँ हो तो बाबा फरीद पैदा होते हैं। तो इसलिए आपकी बहुत जिम्मेदारी है। तो खैर व बरकत के लिए फजर के बाद फजर की नमाज पढ़े। 72 मरतबा मैंने पहले ही बताया, सूरह शूरा की आयत नंबर 19, ये ब्लैंक चेक है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, ब्लैंक चेक। देखिए ख्वाहिशात का तो घोड़ा बहुत जबरदस्त, वो तो ताकतवर है ना, जरूरियात की मैं बात कर रहा हूँ। जरूरियात में अल्लाह कभी आपको नाकाम नहीं होने देगा और कभी भरम नहीं टूटने देगा आपका, बिल्कुल मैं आपको सही बताता हूँ। एक अभी आयत कारी साहब ने पढ़ी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे इल्म में कुरान की एक ऐसी आयत है, अगर पूरा कुरान नाज़िल ना भी होता मेरी उम्मत की सारी ज़रूरियात और हाजात के लिए ये एक आयत काफ़ी थी। वो कौन सी है? वो सूरह तलाक 28वां पारा आयत नंबर 2, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। हाँ जी, तो फरमाया ये आयत आप सुबह शाम इसको पढ़े और इसके इतने बरक़ात हैं कि आपके तसव्वुर से आगे। इस तरह फजर की नमाज पढ़ के 72 मरतबा दाएं हाथ के पोरों पर न तस्बीह लेनी है न काउंटर लेना है। हाँ जी, और आप 72 ये 15 पोरे 4 मरतबा पढ़ेंगे 60 दफ़ा, फिर 12 दफ़ा पढ़ेंगे तो 72 हो जाएंगे। 72 मरतबा ये पढ़ने हैं सूरह शूरा की आयत नंबर 19 बाद नमाज फजर। वो क्या है? अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। 72 मरतबा ये पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ अता फरमाए। दूसरा मैं अक्सर वजीफा बता, तो जैसे ही घर से निकले, आप सब्जी के लिए औरतें निकल रही हैं, कपड़ा लेने के लिए निकल रही हैं, कोई और शॉपिंग के लिए, आप दफ्तर जा रहे हैं, जैसे ही घर से निकलें 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। जहां जाएंगे मेहरबानी वाला माहौल मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह बंदे के पुत्र से आपका वास्ता डालेगा, चोरों डाकुओं से अल्लाह ताला बचा लेगा। इसी तरह ये मामूल बनाए, जैसे ही घर में दाखिल हों, तो जैसे ही दाखिल हों कोई नजर आए या ना आए, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, या रसूलल्लाह बहुत तंग पड़ गया। अब देखो ना कितने वज़ाइफ, कितनी बरकतें हुजूर की दामन से मिलने, क्या जरूरत पड़ी है जाली पीरों के पास, आमलों के पास जाने, कुरान से बड़ा कौन सा है। तो इसलिए घर में जैसे ही दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कोई नजर आया या नहीं आया, रहमत के फरिश्तों की नीयत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं इससे पहले वो हदीस बयान किया, हुजूर के पास एक सहाबी या रसूलल्लाह बहुत तंग, हुजूर ने ये अमल बताया। वो सहाबी आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ना सिर्फ मैं खुद अमीर हो गया हूं, मैं अपने गरीब हमसायों की भी मदद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई भी दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में, और एक दफा सूरह इखलास 3 दफा पढ़ ले तो बहुत अच्छा, खड़े होके थोड़ी देर पढ़ ले, हाथ बांध के तो बहुत अच्छा, नहीं तो चलते ही चलते ही पढ़ते जाए। ये अमल बना के देखें, इंशाअल्लाह घर में रहल पेल हो जाएगी और रहमतों की बारिश हो जाएगी और रिज़्क़ में अल्लाह ताला फरावानी अता फरमाए। इस तरह सूरह वाक़िया सुबह और शाम पढ़े। जादू टूने से ये जो आखिरी सूरतें हैं फलक और वन्नास, आप देखें ये 11 आयात हैं, ना इनमें रोजे का कोई जिक्र है, ना हज की इबादत, ना नमाज, ना वालिदैन के हुकूक, ना बीवी बच्चों के हुकूक। इसमें क्या है? ये जादू टूने का ही तो इलाज है। 11 सूरतें, 11 आयात है, 2 सूरतें हैं। नबी अलैहिस्सलाम रात के वक़्त जब भी आप रात को तशरीफ फरमा होते, अपने बिस्तर पर आप जाते, तो आपका मामूल ये होता, इस तरह टांगे सीधी फरमाते, पहले इस तरह, हाँ जी, यानी ऐसे बैठे एल टाइप जिस्म का बन जाए, और फिर ये आखिरी जो कुल है ये हुजूर नबी पाक 3 मरतबा पढ़ते, आप 1 मरतबा पढ़, ये पढ़ के इस तरह फूंक मार के सर से लेकर पाँव तक ऐसे हुजूर फेरते। ये आपका मामूल था, चूँकि हुजूर सोने बड़े थे, हुजूर को अल्लाह ने इज्जतें बड़ी दी थी, नज़र लगने का खदशा ज़्यादा था, तो रोज़ाना सरकार ऐसे करते। तो ये आप अमल करें, दुनिया जहान का कोई जादू टूना नहीं हो सकता। जिस घर के अंदर सूरह अल बकरा का पहला रुकू सुबह और आखिरी रुकू आखिरी पढ़ा जाए,
اور اس کے بعد آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ پہ جادو، بھی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ کی تقدیر غالب آ سکتی ہے، اور مسائل ہو سکتے ہیں، یہ پڑھنے والے گھر کے اندر جادو ٹونا نظر بد نہیں ہو سکتی، ہاں ہوگی فوری کاٹ ہو جائے گی، ہوگی فوری کاٹ، لہذا گھبرانے والی چیز ضرورت نہیں۔ تو یہ چیزیں چاندے کے ہیں، آپ یہ کر کے رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے نماز۔ اگر میں دو لفظوں میں پوچھوں اور میں بتاؤں کہ ہمیں اگر کوئی سوال کرے کہ دنیا میں کیا لینے آئے تھے، ایک ہی جواب ہے، ہم نماز پڑھنے آئے تھے۔ تو اس لیے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، آپ بھی اور آپ بھائیوں سے بھی نماز کی پابندی کریں، یہ اذکار اور وظائف اپنے معمولات میں لائیں، اللہ جل شانہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔